अनकही कहानियों की यात्रा शास्त्रीय और समकालीन नृत्य, साहस, स्वतंत्रता और लचीलेपन की कहानियाँ बताता है। सारे वॉलंटियर्स प्लीज स्टेज पर पधारें। 41 मिनट के इस प्रदर्शन में कुछ एसिड अटैक और कैंसर सर्वाइवर्स भी अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रदर्शन को वेस्ट का निर्देशन प्रसिद्ध कथक कलाकार जयश्री आचार्य ने किया। नायक है। मैं अभी क्वेस्ट के ऑडियंस में बैठी थी और मुझे लगता है कि ये चीज़ एसेंशियल व्यूइंग होनी चाहिए, ये सबको देखनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड होना चाहिए सबके लिए, क्योंकि ये आपके दिल के इतना करीब आ जाएगा कि आप, मुझे नहीं लगता मैं अब 1-2 सालों के लिए ये भूल पाऊँगी, क्योंकि जो अभी हमने देखा है बहुत सटली, बहुत परफॉर्मेंस आर्ट वे में, ज़्यादा मतलब ऑन द नोज नहीं है, ज़्यादा डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ऐसी तरह से हमें दिखाया गया है कि हम ये कहानियाँ जो हैं, जो हम शायद इस जर्नी से गुजरे नहीं हैं, लेकिन हम वो दर्द समझ पा रहे हैं या हल्का सा भी समझ पा रहे हैं। और उसमें मतलब हम इतना रो रहे थे, सब इतना रो रहे थे, बिकॉज बस एक परफॉर्मेंस आर्ट डांस ड्रामा के ज़रिए हम ये समझ पा रहे हैं कि ये लोगों की कहानियाँ एक्चुअली में क्या है और क्या वो एक्सपीरियंस करते हैं। I was sitting in the audience and I was definitely not prepared for what I was about to witness, because even though I've known about this project, I was definitely not prepared to see how beautifully these performances represented such like events that take place on a daily basis. और ये रोज़ की चीज़ है, ये इतने सारे अनसुने किस्से होते हैं और हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। सो टू सी दैट represented, even though it's like not doing justice to the people who have witnessed this, it's a very, very beautiful thing and a very delicate experience, and I could not stop crying just because of how, like, as a dancer myself, I could feel what was being portrayed, even though I was just sitting meters apart from all my groups. So yeah, I was really. And I am from Gurgaon. I'm an anesthesiologist practicing in Gurgaon, and my daughters both learn dance from Jayashree Acharya ji. They've been learning for the past 12-13 years now, both of them. My older one especially, she's 22 now, and they both were here and as volunteers. So this was probably among the most spectacular concepts and performances I've seen from Jayashree ji, and it was so inspiring and moved us, emotionally overwhelmed me, and I'm so happy I came, because initially I thought पता नहीं गुड़गांव से दिल्ली आने में टाइम लगेगा, आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, बारिश है, but it was totally worth it, and it was just the most beautiful thing, and I hope it can go to other shows also, so that more people can watch it and they will know about it. Thank you. 22 years old. I have been training in various styles, be ballet, jazz, contemporary, and I was just here to support my teacher called Shomini. She was here performing after I don't know how long, and just to see all three of them together with such a strong message with their bodies and what they could just emote was just wonderful. Me being so young, it just taught me so much more than what movement is. It gave me like a lesson for life, and it's something which I will always remember, because being so sheltered in this generation, we don't really see or experience what goes on, in so many people's lives. But just through being an artist, you can feel so many things which you have maybe never experienced in life. So I'll always cherish this, and I'm so glad I came here despite the rain and the traffic. So yeah, it was a wonderful experience. So I am actually a classical dancer and a storyteller myself, and I've worked with Showing in a few projects. So it's feeling like them putting together both contemporary and Kathak. It is a very different perspective, and at the same time the way they really show on what they want to present, it is very commendable. Their performances, I feel like not just me, a lot of people in the crowd, even though they might not have gone through the experience themselves, they related to the performance, because then we are all humans, we understand if someone is feeling, one might feel in that particular situation. So they really brought out those emotions, and there was, I feel, even for the ones who have been through such situations, for them also it was pretty cathartic to be watching it on the stage being portrayed in such a
by such professionals with such dedication. So, great experience. ये प्रोडक्शन हमारा है, हमारे सहभागी कलाकार निशा दीपगढ़। क्या कहना चाहेंगे आज प्ले के माध्यम से आपने क्या समझाया लोगों को? ये प्ले नहीं था, ये डांस प्रोडक्शन था और इसमें कुछ समझाने की बात नहीं थी, थोड़ी जागरूकता लाने की बात थी कि जो भी हमने जिन भी पात्र को लिया है उनके लिए अवेयरनेस, नॉट सिंपैथी, एम्पैथी चाहिए सोसाइटी में। बस उसी की कोशिश की हमने अपने डांस के माध्यम से। किस बात से इंस्पायर्ड होके आपने ये? इंस्पिरेशन तो सबको कहीं ना कहीं हर रोज़ ही मिलती है, ये बात अलग है कि हम उसको कैसे किस ढंग से लेते हैं। तो इसकी इंस्पिरेशन मुझे बहुत कई साल पहले मिली थी, अब इस प्रोडक्शन के माध्यम से इसको मैं साकार रूप दे पाई हूँ और इन दोनों की मदद से ही संभव हुआ है। सो दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस जर्नी। क्या संदेश रहेगा इस देश की महिलाओं को जो आज भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती? मैं ये कहूँगी कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए मैसेज नहीं है, ये हमारे समाज के लिए मैसेज है। स्त्री पुरुष दोनों सोसाइटी का हिस्सा है, सेफ्टी सबके लिए है और ये सबसे पहले तो दिल से शुरू होती है। सबको रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा, सिर्फ ज़बानी नहीं, अंदरूनी एंड थ्रू एक्शंस। सो मेरा मैसेज सोसाइटी के लिए है, सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं। इस डांस परफॉर्मेंस के द्वारा जो बिल्कुल साइलेंटली थी लेकिन बहुत कुछ समझाया गया, क्या क्या था उसके अंदर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जयश्री जी का जो विजन था दीदी का कि सिर्फ ये नहीं कि क्या होता है और क्या पीड़ा होती है, पर हर बार जब हम सर्वाइवल वर्ड यूज़ करते हैं हम वो सिर्फ एक 7 लेटर का वर्ड है, 7-8, पर इसके अंदर जो करेज, जो दृढ़ता, जो मनोबल चाहिए होता है, इसको दर्शाने के लिए ये पीस था कि एवरीबडी कैन डू इट। बट सवाल ये है कि सोसाइटी को कि वाई शुड एनीबडी नीड टू डू इट, वाई कैन वी नॉट जस्ट एक्सेप्ट एंड ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर। मैं इलीशा दीपकर, मैं कथक नृत्यांगना हूँ, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या। दीदी के सानिध्य में हमने ये जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया, मुझे ऐसा लगता है कि हम आज उनको एक विक्टिम या सर्वाइवर के रूप में देख रहे हैं, बट ट्रूली दीज सर्वाइवर्स टुडे आर मेकिंग हिस्ट्री, दे आर बिकमिंग एन इंस्पिरेशन। कई सारी महिलाओं, सोसाइटी सबके लिए और कितनों को सेव कर रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रोडक्शन इसका पूरा ये जो जर्नी थी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दैट पेन, बिल्कुल आई थिंक इट्स अनमैच्ड। मैं सोच भी नहीं सकती, मैं अनुमान भी नहीं लगा सकती। हम किस तरह आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट सेंस ऑफ एम्पैथी इन आवर हार्ट्स, बिकॉज हम लोग ना, और मेरे ख्याल से ये हमारे फील्ड में भी फॉर द कथक फ्रेटर्निटी इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, बिकॉज पीपल यूजुअली डोंट कवर एज मच ऑफ सोसाइटी कि जिस तरीके से हमारे सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उन चैप्टर्स को कई बार क्लासिकल डांसर्स नहीं कवर करते, पर दीदी का जितना सुंदर विजन था इस पर्टिकुलर पीस को लेकर। What message you will give to the women? I am truly still myself understanding the essence of of being beautiful inside, and I think बहुत हमारे ना एज अ वुमन वी हैव अ वेरी ऊपरी नोशन ऑफ बीइंग फीलिंग और प्रिटी आउटसाइड, बट आई थिंक जो अंदरूनी खूबसूरती, द करेज, खूबसूरती उस करेज में, उस साहस में जो टूट कर वापस अपने आप को समेटने का है।